Namaskar. Throughout the globe, second Thursday of March is celebrated as World Kidney Day to create awareness on the importance of our kidneys. This year's theme is Kidney Health for Everyone, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. Today, PBNS reached out to senior consultant urologist Dr. Amredhan Pathak. Let's listen to the expert on the importance of our kidneys in our body. Preparing for unexpected, it suggests that there may be some situation which is unexpected and that we don't know how to tackle this situation, like COVID-19. COVID-19, similar situation happened 100 years back. But this year, COVID-19 happened after 100 years. And during this period, there is a sudden increase in kidney patient who has some kidney disease. So all the hospital get overburdened by the large number of kidney patients. Either they require dialysis or consultation from nephrologist, consultation from urologist, and need for renal transplantation. So how we tackled it? Normally, routine, whatever case we get, we treat it according to our resources and theme. But how to prepare for unexpected? So unexpected cover like pandemic, what happened in COVID. Apart from this, there are other circumstantial emergency like massive earthquake, which happened in Gujarat about a decade back, and very recently it happened in Turkey and Syria. So there, in earthquake, there is a large number of injured patients, whose muscle get crushed, who has got multiple fracture, and that leads to absorption of toxin from the dead muscle, and his kidney get damaged. So this year, government sent so many relief to the Syria and Turkey. Apart from that relief, we also send them dialysis machine, nephrologist to treat kidney patients. So what lesson we took from that incident? That kidney diseases suddenly unexpected increase in these two situations. And so this is one part, that preparing for unexpected thing. And the other portion of the theme is taking care of vulnerable, like patient who has uncontrolled blood pressure, patient who has uncontrolled sugar, patient who is who is on immune suppressive medicine. These patients are vulnerable to become kidney patient. So how to prevent that? This is the theme of this year World Kidney Day, and we celebrate it every year to make awareness. Magnitude of problem is very vast. In India, every year 2 lakh new kidney disease patient diagnosed, and or 2 lakh kidney disease. We provide 1 lakh patient dialysis, 10,000 patient peritoneal dialysis, and only 10,000 renal transplant. So rest of the patient we cannot take. They cannot afford to go for the treatment of kidney disease. Keeping these facts in mind, this present government about 2-3 years back, not only this government, central government as well as many other state government launched the program of dialysis unit in every state in government hospital. So that program is to facilitate this uncared
population who has no means to go to private hospital or bigger city for the treatment from a nephrologist and from a dialysis or prophylactic care of kidney disease. So this the problem of kidney disease is very vast. देखो, एक तो किडनी डिजीज का मुख्य वजह हिंदुस्तान में डायबिटीज मेलाइटस, शुगर का पेशेंट और ब्लड प्रेशर का पेशेंट, ये दोनों पेशेंट जो है ये प्रोन होता है। इसमें संभावना रहती है कि ये अगर शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ठीक से नहीं करेगा तो कुछ दिन तो वो ऐसे चलेगा, उसके बाद उसका किडनी इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर ठीक से टाइट करेगा तो फिर किडनी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह से एक दो बार होने के बाद वो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट बन जाएगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ग्रुप जो है वो है किसी को किडनी की दूसरी बीमारी हो, जैसे ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तीसरा होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, किडनी ठीक है लेकिन उसके रास्ते में स्टोन से रुकावट हो गई, पैदाइशी कोई रुकावट हो गई, या पेशाब के थैली में रुकावट हो गई प्रोस्टेट के कारण, या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गया उससे रुकावट हो गई। तो किडनी ठीक था, अब उसको पेशाब निकालने का जगह नहीं मिला, उससे किडनी फूल गया और धीरे धीरे खराब हो गया। बाद में हमने उसको ठीक भी कर दिया, फिर भी वो पूरी तरह से उसका किडनी नॉर्मल नहीं हो पाया। तो ये जो एक है ऑटोइम्यून डिजीज और मेनी यूरोलॉजिकल डिजीज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इसके अलावा और जो डिजीजेज है वो है एनाल्जेसिक एब्यूज, जो दर्द की दवा है। वो दर्द की दवा लोग रैम्पेंट खाते हैं, गठिया के रोग के लिए, सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, और भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें दर्द की दवा लेनी पड़ती है, तो उसमें ये लोग अननेसेसरी खा लेते हैं, तो उससे भी किडनी खराब होता है। स्क्रीनिंग के लिए मोटा मोटी 3 टेस्ट है जो कि करने से पता चल जाता है कि इसका किडनी खराब होने वाला है या नहीं होने वाला। एक तो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बता देता है कि किडनी दोनों साइज ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, नॉर्मल है। किडनी का साइज छोटा हो गया, कंसिस्टेंसी उसका इकोजेनेसिटी इंक्रीज कर गया अल्ट्रासाउंड में, तो लगता है कि इसको किडनी डिजीज हो सकता है। तीसरा है कि यूरिन अल्बुमिन और क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। क्रिएटिनिन जो है यूजुअली 1.3 से नीचे होता है, डिफरेंट लैब में कहीं भी करा लो, तो 1.3 से ज्यादा हो गया इसका मतलब इसको किडनी डिजीज हो गया। और ये क्रिएटिनिन तब बढ़ता है किसी आदमी का जब उसका 2/3 किडनी काम करना बंद कर देता है, तब ये बढ़ता है। तो इसलिए एक क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि उसके यूरिन में अल्बुमिन तो नहीं आ रहा। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग ये 3 टेस्ट करते हैं जो इस ग्रुप के पेशेंट हैं जिनको कि बहुत दिन से शुगर है और वो ठीक से कंट्रोल नहीं है, बहुत दिन से ब्लड प्रेशर है ठीक से कंट्रोल, तो हम लोग ये 3 टेस्ट करके देखते हैं कि इसको किडनी डिजीज तो नहीं हो गया, फिर उसका उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। कि हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या करें कि किडनी डिजीज हो ही नहीं, बल्कि जिस कारण से किडनी डिजीज होता है वही नहीं हो। एक तो शुगर है मोस्ट कॉमन, दूसरा ब्लड प्रेशर है मोस्ट कॉमन। तो इसको कैसे कम करें? तो आप अपना हेल्दी डाइट खाइए जिससे आपका बॉडी का वेट ठीक रहे। अननेसेसरी मीठा चीज मत खाइए। जो लोकल डॉक्टर से देसी दवा खा लिया और उसको जानकारी नहीं है, जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है उसको ये जानकारी नहीं है कि ये दवा खिलाएंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। एक सोसाइटी में और भी नई चीज आई है कि नए जगह जो यंगस्टर हैं वो जिम जाना शुरू किए हैं। अब जिम में वो हे प्रोटीन देता है खाने के लिए पाउडर, अब उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जिससे उसका मसल तो बन जाता है लेकिन वो किडनी को डैमेज कर देता है। तो ये भी एक यंग जनरेशन में किडनी खराब करने का इंपॉर्टेंट कारण है। तो लाइफ स्टाइल ठीक होना चाहिए, होममेड फूड खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली आपका बॉडी वेट ठीक होना चाहिए आपके हाइट के मुताबिक, तो आपको ये सब ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होगा और भी आपकी और भी समस्या नहीं होगी।
कुछ कैंसर की बीमारी नहीं होती है इससे। तो ये सब चीजें, इससे फायदा है। तो आपको हेल्दी डाइट खाना है, और अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है कि ब्लड प्रेशर शुगर है, तो आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर तो डेवलप नहीं हो गया, शुगर तो डेवलप नहीं हो गया। और जो मैं अन्य बातें बताया कि जो अननेसेसरी दवा खाना और दर्द की दवा खाना और लोकल दवा खाना, जिसके बारे में जो दे रहा है उसी को पता नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ, इसको क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, तो वो उसको रोकना बहुत जरूरी है। पहले तो आपका डायग्नोसिस हो गया कि आपका किडनी थोड़ा खराब है, आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से इलाज कराया, तो वो आपके ब्लड प्रेशर का, शुगर का दवा इस तरह से टेलर कर दिया, इस तरह से मैनेज किया कि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया। लेकिन अब आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो गए कि फ्यूचर में आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप उसी टाइम से प्लान करेंगे कि हमको अगर किडनी खराब हुआ और डिटोरिएट किया तो हमको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं कहाँ कराऊंगा, तो वो आप प्लान कर लें। प्लस किडनी डायलिसिस कराने से पहले एक हाथ में फिस्टुला बनाया जाता है, जिससे कि बहुत आसानी से कम पैसे में डायलिसिस हो जाता है। अदरवाइज इमरजेंसी में हम लोग गर्दन के खून के नली में एक स्पेशल कैनुला डाल करके डायलिसिस करते हैं, वो कॉस्टली पड़ता है। अगर आपने टाइम रहते पहले ही ये फिस्टुला बनवा लिया और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा लिया, तो आपका फिस्टुला डायलिसिस का कॉस्ट कम पड़ेगा और खर्चा भी कम पड़ेगा। अब रही बात कि डायलिसिस मशीन कहाँ है, आप पहले से जानकारी हासिल करके रखें। आप गूगल पे टाइप करें कि नियरेस्ट डायलिसिस मशीन कहाँ पे है, चीपेस्ट डायलिसिस सेवा कहाँ पे उपलब्ध है। यू प्लान इट बिफोर हैंड so that you can easily access that place and bargain. एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड क्लर्क का एक ग्रुप होता है, वहां पे ये तय किया जाता है कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांट दे रहा है इसमें फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है कि, तो ये चीज पूरा तहकीकात किया जाता है। जब अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट होता है एक्सेप्ट वाइफ, तो इस चीज को देखा जाता है कि जो जो किडनी दे रहा है उसका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है और जो ले रहा है उसका कितना है। अगर देने वाले का इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा है तो ज्यादा संभावना रहता है कि इसमें मनी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अगर लेने वाला का इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा है, इसका मतलब इसमें फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये चीज एक हम लोग मोटा मोटी समझाने के लिए बोलते हैं कि ये चीज दिखाओ। और अगर वो उससे साइकोलॉजिकली बहुत रिलेटेड, मान लो कोई कोई सर्वेंट है या कोई उसका स्टाफ है, इससे 25 साल से इसके साथ है, तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि मैं 25 साल से इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये मर जाएंगे तो ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा और तो फिर सबका नौकरी खत्म हो जाएगा, हम दे रहे हैं, इनके घर में कोई नहीं है। तो ये चीज प्रूफ होना चाहिए कि ये सचमुच 25 साल से इसके यहाँ काम कर रहा है, तो फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये जो ग्रुप होते हैं ये अप्रूव करते हैं इस चीज को, जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। कि जो किडनी का डोनर होता है, पहले चीरा लगा करके उसका किडनी निकालते थे तो उसको 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। आजकल लैप्रोस्कोपी से होने लगा, छोटे छोटे पेट में 2-3 छेद होते हैं, किडनी को हार्वेस्ट करके रखे रहते हैं। जैसे ही रेसिपिएंट का आर्टरी और वेन, उसको रेसिपिएंट बेड बोलते हैं, तैयार हो गया, वो किडनी को निकालते हैं, उसको बर्फ से ठंडा करते हैं, उसमें एक स्पेशल तरह का फ्लूइड देते हैं और फिर वहां पर आर्टरी, वेन और यूरेटर को एनास्टमोज करके ब्लड सप्लाई शुरू करते हैं, तो वो किडनी फिर काम करने लगता है। तो ये प्रोसेस अब पेशेंट फ्रेंडली हो गया। अब पेशेंट को ज्यादा कम असुविधा होती है, खास करके डोनर को। डोनर को पहले था कि बहुत डर लगता था कि कैसे इसको किडनी देंगे, 1 महीना रहना पड़ेगा। तो डोनर में भी हम लोग पूरी तरह से उसको चेक करते हैं कि इसका किडनी देने से खुद तो नहीं किडनी मरीज बन जाएगा, तब नहीं करते।
उसको पूरी तरह से, क्योंकि वो दे करके एक दिया और खुद भी किडनी मधुमेह ऐसे कंडीशन में नहीं करती। तो ये सब कुछ कारण है जो कि उसके अलावा करने से ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेफ होता है। एक आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। सब आदमी सोचता है कि 100 साल जिए। हम लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चे को, तो वो भी बोलते हैं कि 100 साल जियो, 125 साल जियो। तो ये इस चीज को कैसे सच करें, उसमें जरूरी है कि आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में जिए। और जैसे आदमी एक्सपीरियंस होता है, उसका अर्निंग भी और बढ़ने लगता है, तो वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा तो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। जो 80 साल का है और वो फिजिकली फिट है, अपना बिजनेस कर रहा है या अपना कंसल्टेंसी कर रहा है, वो देश के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बड़ा प्रेशियस आदमी। तो उसको कैसे इस डिजीज से बचाएं, उसका कैसे तो उसको इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि कहीं मुझे ब्लड प्रेशर ना हो गया, शुगर ना हो गया, या अन्य जो किडनी रिलेटेड डिजीजेज हैं, स्टोन है, बीपीएच है, ये तो नहीं है। उसका समय रहते इलाज करें और अपना टारगेट रखें कि कैसे मैं भी खुशी खुशी अपने बल पे 100 साल जीऊं, मेरा सब शरीर का अंग ठीक काम करे, ब्रेन ठीक काम करे, किडनी ठीक काम करे और हार्ट ठीक काम करे। और जो अल्टीमेट एम होता है कि खुशहाली भरी 100 साल कैसे जिए, इस चीज की तमन्ना रखें और इसके तरह शुरू से जागरूक रहें। तो उसका ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप मतलब बात बात में खराब न करें। और दर्द की दवा खाने से पहले सोचें कि ये दर्द की दवा कहीं ज्यादा खाने से मेरा किडनी तो नहीं खराब हो जाएगा। और जब किसी अनजान आदमी से अनजान दवा लेते हैं तो उस टाइम में भी ध्यान रखें कि ये किसी दूसरे ऑर्गन को तो नहीं खराब कर देगा, ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर और अनक्वालिफाइड मेडिसिन मेरे नुकसान तो नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें तो एक वो बड़े बड़े आपदा से बच सकते हैं।